Hello friends, how are you all? Are you enjoying your studies? Yes, once again I am here with a new lesson. Oh, what is this? Wow. Oh, this is beautiful white horse. Earlier we were talking about the summer and here is this beautiful white horse. So I gave you the clue which lesson we are going to study. Yes, 11th class. It is your lesson 1 snapshot book, The Summer of Beautiful White Horse. What we are going to do this summer is we are going to enjoy horse riding. Do you like horse riding? No? By studying this lesson, I tell you, you are going to like this horse riding and you are going to try it. आप ये देख भी सकते हैं, आपकी बुक से मैंने ये लिया है In the Summer of Beautiful White Horse from your book Snapshot. It is lesson 1 by William Saroyan. टाइटल ही देखिए आप, The Summer of the Beautiful White Horse. मतलब क्या है कि ये कहानी है आराम और मुराद की, जिन्हें गरीब होते हुए भी हाथ लगता है एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स और वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको पूरी समर अपने साथ रखेंगे, उसको एंजॉय करेंगे. हेंस द राइटर हैज़ गिवन द टाइटल द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. दिस इज़ द हॉर्स. इफ़ वी टॉक अबाउट द राइटर ऑफ द लेसन, William Saroyan, born 31st August 1908, Fresno, California. During his school days, he decided that he would become a writer. This is William Saroyan in his young age. वो कहा भी करते थे कि I don't know what makes a writer, but it probably is not happiness. It is his difficult times that made him a writer. तो whenever he was in difficult time, he came out with a मतलब कि एक blockbuster कहें हम, best seller. That's why he used to say कि जो difficult time है वही जो है राइटर का होता है, जब वो अपनी कोई great creation के साथ बाहर आता है. ये जो है उसका एक सिग्नेचर है. उनकी जो एक कलेक्शन आया, My Name is Aram in 1940, of which this The Summer of Beautiful White Horse is first one story. इसमें बहुत सी स्टोरीज़ हैं. उसका पहला जो है आपके लिए पहला ही लेसन दिया गया है, is before you to study. The book resembles a novel in that the stories all have आराम as a hero. जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे नरेटर जो है आराम है, 9-year-old बॉय हैं. जो ये बुक है My Name is आराम, इसमें जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनका हीरो जो है आराम ही रखा उन्होंने है. तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसी लेसन की समरी. 10+1 क्लास, आई वेलकम यू ऑल. और मैं ये कहना चाहूँगा, इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. दिस इज़ विजय कुमार, माई न्यू क्लासरूम. आई वेलकम you all here and we will go this time its summary of the lesson. Story क्या है? I tell you what happens. It is story of Aram and Murad. दो ब्रदर की ये कहानी है, कज़न हैं जो. तो ये आपको याद दिलाएंगी आपके बचपन की भी जो नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस हैं हुए हैं आराम और मुराद को. मुराद who is considered to be crazy is a 13 years old boy. Aram is 9 years old. They are cousin. As I have told you, Murad is considered by all craziest person in the family. So let's start. तो what happens one day, जो मुराद है comes to Aram at 4 a.m. in the morning in the wee hours, and he wakes him up by tapping at the window. And Aram gets up and looks out of the window, and something unbelievable is there. There was enough light, and he confirms that he is not dreaming. He rubbed his eyes. जो Aram है वो अपनी eyes को rub करता है. He sees that Murad is sitting on a beautiful white horse. है ना, कुछ ऐसा ही सीन ये आप देख सकते हैं कि मुराद जो बैठा हुआ है अपने ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है. वो अपनी आंखें मलता है, देखता है कहीं मैं ड्रीम तो नहीं ले रहा. वो कहता है, यस यू आर नॉट ड्रीमिंग
आर्मेनियन भाषा में वो बोलता है येस यू आर नॉट ड्रीमिंग, कम इफ़ यू वांट टू राइड। तो मुराद उसे बुलाता है एंड मुराद ही इज़ अलाइव, है ना, मोर देन एनीबॉडी एल्स इन देयर फैमिली, बट दिस टाइम इट वाज अनबिलीवेबल। हाँ, अलाइव तो है वो, है ना, वायबल है वो, लाइव पर्सन है वो, लाइव वायर है वो, क्रेजी माना जाता है वो। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वो आराम को दे रहा है एक हॉर्स राइडिंग का, वो अनबिलीवेबल है। क्यों? यहाँ पर वो रीज़न दे रहा है आराम, दैट वो आराम इज सेइंग कि हिज लॉन्गिंग्स वर फॉर हॉर्सेस एंड टू राइड अ हॉर्स। तो ये एक तो ये है कि जो मैं चाहता था वो ये लेकर आ गया है, और दूसरा वो हैरान हो रहा है, अनबिलीवेबल है कि वी आर पुअर, वी हैव नो मनी, आवर फैमिली इज पॉवर्टी स्टिकन, वी गैरोगलेनियन ट्राइब, वेरी कॉमिकल एंड अमेजिंग पॉवर्टी वी आर लिविंग इन, एंड इवन आवर एल्डर्स, आराम बोल रहा है, इवन आराम्स एल्डर्स डू नॉट नो हाउ टू अरेंज फॉर द फूड। इम्पोर्टेंट वाज डिस्पाइट पॉवर्टी, वो बोलता है आराम कि वी वर फेमस फॉर ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी फॉर 11th सेंचुरी, इवन व्हेन दे वर वेल्थिएस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, तब भी जो है हम जाने जाते थे अपनी ईमानदारी के लिए। तो 3 बातें वो बताता है कि हम लोग प्राउड हैं, प्राउड फॉर बीइंग ऑनेस्ट हैं, और वी आर बिलीविंग इन राइट एंड रॉन्ग हैं शुरू से ही फॉर 11th सेंचुरी, एंड दैट अ गैरोगलेनियन वुड नेवर टेक्स एडवेंचर ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। चोरी की तो बात छोड़ो, तो वो जो घोड़ा लेकर आ गया है, कहाँ से लेके आ गया है, दैट वाज अनबिलीवेबल। तो आराम भी जो है घोड़े को स्मेल करता है, उसकी ब्रीदिंग को हियर करता है, ही हियर्स इट्स ब्रीदिंग, इट वाज एक्साइटिंग to him. He thinks that Murad could not have bought it being poor, and thought he must have stolen it, but refused in believing this because as no member of Garogolenian family could be a thief. उसको ये भी मालूम है, तो ये एक क्वेश्चन रहता है उसके दिमाग में कि घोड़ा कहाँ से लाया है। तो he stares at his cousin, then at her. He is delighted and frightened both. वो डिलाइटेड भी है कि घोड़ा आ गया राइड करने को, ही इज़ वेरी हैप्पी, एंड फ्राइटेंड आल्सो कि कहीं इसने हमारा रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ दिया गैरोगोलेनियन ट्राइब का, चोरी करके तो नहीं ले आया। तो ही आस्क्स, आराम आस्क्स फ्रॉम वेयर डिड ही स्टील, कि उसने कहाँ से ये चुराया है। तो वो क्या कहता है, वो अनसुना कर देता है मुराद, कहता है कम आउट इफ़ यू वांट टू राइड, तूने चलाना है तो चला ले। ही वाज श्योर नाउ, अब ये बात सुन के आराम को श्योर हो जाता है ऑफ द फैक्ट दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया है। आराम जो है जस्टिफाई करता है अपनी थिंकिंग को कि स्टीलिंग ऑफ ए हॉर्स इज़ नॉट द सेम एज स्टीलिंग ऑफ द मनी, कि पैसे चुराना और राइडिंग के लिए घोड़ा चुराना दोनों में फ़र्क है। राइडिंग के लिए घोड़ा चुरा रहे हैं तो वो चोरी नहीं है, ये कह के वो अपने आप को जस्टिफाई करता है। एज दे बोथ वर क्रेजी अबाउट द हॉर्सेज एंड राइडिंग दैम, इट इज़ नॉट स्टीलिंग अंटिल दे ऑफर टू सेल इट, क्योंकि वो उसको आगे बेचने थोड़े ही जा रहे हैं, वो तो उसको एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ, और बाद में उसको दे देंगे जिसका भी है। एंड सेल की बात है तो विच दे विल नेवर डू, वो तो कभी सेल करेंगे ही नहीं उसको। तो बोथ लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, है ना, एंड आराम जो है पीछे बैठता है, मुराद घोड़े को चलाता है, हॉर्स जो है ट्रॉट करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एयर इज़ लवली एंड फ्रेश, इट्स गुड टू ब्रीद इन दैट time early in the morning. It is a wonderful experience feeling for Aram. Murad जो है starts singing and he even roars. Here Aram remembers how Murad is natural descendant of crazy streak in the tribe. यहाँ पर आराम जो है पता उसको भी महसूस होता है कि ये तो लड़का पागल ही है, कहाँ से घोड़ा लेकर आ गया है। तो हमारे ट्राइब में इससे पहले जो हैं, बिफोर हिम वाज अंकल खुशरो, इनॉर्मस पावरफुल हेड, ब्लैक हेयर, लार्जेस्ट मुस्तास है उसकी, फ्यूरियस है जो टेम्पर में, इरिटेबल है, एंड खुशरो की वो याद करता है अंकल को आराम की। He always roars by saying it's no harm, pay no attention to it. कोई भी बात हो अंकल खुशरो यही कह देते हैं कि ध्यान मत दो, चलो अपना काम करो। Once while getting his mustache trimmed, एक बार जब वो अपनी मूछें जो हैं ट्रिम करवा रहे थे, Arak his son, खुशरो का बेटा जो उनके पास आता है, comes running and tells all, Arak is there. Hello dad. हाँ, yes Arak. House is on fire? Yes dad. No harm in it. Pay no attention to it.
idiot. About their house on fire, he roars by saying the same words. No harm in it, pay no attention to it. उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया है, कहता है खुशरो को कि पापा घर में आग लग गई है, तो उसको भी वो यही जवाब देता है. इवन व्हेन बार्बर जो है उसको बोलता है कि सर आपके घर में आग लग गई है, आप जाइए, वो कहता है इनफ, पे नो अटेंशन टू इट, तो अपना काम कर, मेरी मुस्ताज को ट्रिम कर. सो खुसरो डिसेंडेंट इज हिज ब्रदर मोराद. आराम याद कर रहा है कि कैसे घोड़े पर बैठा वो जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्रेजी बॉय है. दो मोराज फादर जो है हम बात करें, मोराद इज क्रेजी, नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरो. लेकिन जब मोराद के पापा की हम बात करें, जोराब जो है इज अ प्रैक्टिकल मैन. बट एज इज सेड, ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट नेवर मीन्स ऑल्सो टू बी द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. जरूरी नहीं है कि सोचने समझने में भी बात करेगा फादर जैसा ही होगा, वो उसके फ्लैश का फादर है, स्पिरिट का फादर नहीं भी हो सकता. दे लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक. उन्होंने जब तक घोड़ा को दौड़ाया, दौड़ता रहा, दौड़ाते रहे उसको. एंड गेट हिम डाउन, बाद में जो है आराम को वो नीचे उतार देता है. मुराद गेट्स आराम डाउन एंड राइड्स अलोन. तो इस पे आराम पूछता है विल यू अलाउ मी टू, क्या तुम मुझे भी अलोन जो है राइड करने दोगे. तो मुराद कहता है कि नो इट्स नॉट अप टू मी, इट्स अप टू द हॉर्स, कि तुम्हें घोड़ा बैठाएगा कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मैं तो मना नहीं करूँगा. सो एज आई हैव अ वे विद a horse. I have a way with horse. और बाद में वो जवाब देता है मुराद कि मेरे को तो घोड़े का पता है कैसे चलाना है. I have a way with a horse. I have also a way with the horse. वो आराम कहता है कि मैं भी जानता हूँ घोड़ा चलाना. तो मुराद kicks it with his heels and shouts run वज़ीर. वज़ीर नाम देता है उसको वो, तो उसको कहता है, किक मारता है अपनी एड़ी से और चिल्लाता है वज़ीर. तो रेज्ड हिम अक्रॉस फील्ड्स, इरिगेशन डिचेस से वो जाता है. एंड कम्स एंड रिटर्न्स आफ्टर 5 मिनट ड्रिपिंग वेट, सारा पसीने से तरबतर है. वाज, अब वो आराम कहता है इट्स माई टर्न नाउ. तो आराम याद करता है कि कैसे जब मैंने व्हेन आई रॉड, हालांकि मुझ में डर था, एंड द हॉर्स डिड नॉट मूव. तो मुराद कहता है कि किक इनटू इट्स मसल्स, हॉर्स रियर्स एंड हॉर्स रन्स फास्ट एंड जो है आराम है फॉल्स डाउन. ही कंटिन्यूज रनिंग, जो हॉर्स है वो कंटिन्यू रन करता है, नीचे गिरा देता है. दे बोथ गो टू फाइंड हिम आफ्टर हाफ एन आवर. मुराद कम्स आउट विद द हॉर्स एंड इट्स मॉर्निंग नाउ इनफ. पीपल वर स्टार्टिंग अप एंड फ्रंट. ही वॉज नॉट वरीड एट ऑल. मुराद को बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उसको मालूम है कि हमने अब क्या करना है. राइडिंग हमने कर लिया, सुबह हो गई, लोग उठ रहे हैं. हाइड्स दैट इन ए बान, और वो उसको एक बान में जो है छुपा देते हैं. तो वो आराम उससे पूछता है, आस्क्स मुराद हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दैट दिस हॉर्स. तो कितने समय पहले तुमने चुराया है. तो वो कहता है फॉर सम टाइम बट टेल्स मी ओनली इन द मॉर्निंग. लेकिन वो पता लगा लेता है कि तूने कई दिन से ये कर रखा है, लेकिन मुझे आज सुबह ही बताया है. एज ही न्यू दैट हाउ मच आराम लॉन्ग फॉर हॉर्स राइड. आराम को ये भी पता लगता है क्योंकि उसने उसको मॉर्निंग में इसीलिए बताया क्योंकि उसे भी मालूम है कि आराम को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है. हु सेड आई स्टॉल. उसके जवाब में मुराद पूछता है कौन कहता है कि मैंने ये चुराया. तो आराम फिर से उससे पूछता है कि कितने समय पहले. तो मुराद कहता है कि नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज सुबह से ही. तो आराम कहता है कि सेज दैट दिस इज नॉट ट्रू, यू आर लाइंग दिस टाइम. ऑफ कोर्स नॉट, है ना, ट्रू नहीं है ये बात. बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, वो कहता है कि इफ़ दे आर फाउंड आउट, आराम तुमने यही कहना है कि बट यू आर टू से इज़ इन दिस मॉर्निंग ओनली. आराम भी उस पर बात समझ लेता है. ही सेज ऑल राइट. तो उसको वो घोड़े को दे टाइट इन विनेयार्ड्स बान ऑफ फार्मर फटवेजिन के जो विनेयार्ड फॉर्म में उसको वो बांध देते हैं. एंड दे वॉक होम, घर चले जाते हैं. तो रास्ते में मुराद उसको बताता है कि दैट अर्लियर दिस हॉर्स वाज अ वाइल्ड वन एंड इट वाज नॉट एट ऑल ईजी टू कंट्रोल इट, बट एज ही हैज़ अ वे विद हॉर्स. तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है. आराम को वो बताता है. आराम आस्क्स इन रिटर्न हाउ डू यू डू इट, कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो. तो वो बोलता है कि इट्स माई अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्सेज. तो वो पूछता है व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, वो कहता है मुराद इस पर. तो आराम भी बोलता है
कि आई विश आई न्यू दिस वट यू न्यू अंडरस्टैंडिंग। तो वो मुराद कहता है कि यू आर बॉय ऑफ जस्ट 9, व्हेन यू ग्रो अप टू 13 ईयर्स यू विल नो दिस। तो फिर वो सुबह जो है हार्टी ब्रेकफास्ट करते हैं एज दे आर हैप्पी। दैट आफ्टरनून अंकल खुशरो जो है कम्स एंड सिट्स इन द पार्लर, ड्राइंग रूम में वो बैठता है, हैविंग सिपिंग एंड स्मोकिंग, है ना, एंड रिमेंबरिंग हिज ओल्ड कंट्री डे। तो व्हाट हैपन्स दैट डे फार्मर जॉन बायरो, जो ओरिजिनल ओनर है उस घोड़े का, वो आता है, एंड असीरियन है जो जानता है अर्मेनियन भी थोड़ा बहुत। ही कम्स एंड इज़ गिवन टबैको एंड कॉफ़ी बाई आराम्स मदर। तो वो बोलता है खुशरो को कि हिज वाइट हॉर्स इज़ स्टोलन एंड ही डिड नॉट नो वेयर वॉज दैट, कि वो कहाँ था। तो बदले में खुशरो ने क्या जवाब देना है उसको, वही जवाब देता है, नो हार्म इन इट, नो अटेंशन टू इट। तो व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े का गुम होना भी क्या गुम होना है, कुछ नहीं गुम होया। हमें देखो होमलैंड इज़ लॉस्ट, हम तो अर्मेनिया से यहाँ आए हैं, सारा कुछ छोड़ कर आए हैं, हम तो कभी क्राई नहीं करते। एंड यू आर क्राइंग फॉर ए हॉर्स, वाई क्राइंग ओवर हॉर्स, उससे पूछता है पलट के बल के। वो कहता है जॉन बायरो, फॉर यू इट्स नथिंग बिकॉज यू आर सिटी ड्वेलर, बट फॉर मी इट इज़ अ बिग थिंग। बट अबाउट माई सरी, मैं अपनी सरी कैसे चलाऊँ, अ सरी विदाउट हॉर्स इज़ नॉट अ सरी, वो भी वेस्ट है, मेरा घोड़ा भी गुम हो गया। तो पलट के खुशरो यही कहता है कि पे नो अटेंशन टू इट। ही सेज दैट ही हैज़ कम हियर बाई वॉकिंग 10 माइल्स टू रीच हियर। वो बोलता है खुशरो, यू हैव लेग्स, तो क्या हो गया, पे नो अटेंशन टू इट। वो कहता है कि मेरी लेग्स में तो पेन है, फिर से क्या है, पे नो अटेंशन टू इट। और जो मेरा घोड़ा गुम हुआ है, जॉन बायरो सेड इट कॉस्टेड मी $60। तो वो खुशरो क्या कहते हैं, आई स्पिट ऑन मनी, थूकता हूँ मैं पैसे पे। तो ही स्टक्स आउट स्लैमिंग द डोर, को बाहर जोर से मारते हुए वो गुस्से में बाहर चला जाता है। मदर जो है उसको अटेंड करती है जॉन बायरो को बाय सेइंग दैट खुशरो इज़ जेंटल इनफ बट ही इज़ होम सिक एंड ही इज़ लार्ज मैन, तो आप उस पर ध्यान मत दो। तो एज ही गोज़, जब जॉन बायरो चला जाता है, आराम को पता है कि घोड़े का मालिक घोड़े की पूछताछ करता हुआ वहाँ तक पहुँच गया है, तो वो मुराद को जाके बताता है। मुराद क्या कर रहा है, देखिए आप, क्रेजी मुराद क्या कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ अ यंग रॉबिन। उसके पक्षी के, एक चिड़िया के पंख जो घायल हैं, उड़ नहीं पा रहा है, उसको वो मरहम पट्टी कर रहा है। एंड आराम हियर टेल्स मुराद अबाउट जॉन बायरो, यू हैव 1 month यू आर हैविंग दिस हॉर्स, promise me not to take it back to John Bairo until he learns, कि जब तक मुझे हॉर्स राइडिंग ना आ जाए मुराद, तुम इसको वापस नहीं दोगे। तो वो पूछता है कि अच्छा तो ये बताओ, जब तक तुम सीख ना लो, until you learn this, how long will you take to learn it? तो आराम कहता है 1 year, ईयर कहता है वो। तो 1 ईयर तो बहुत ज़्यादा है ना, ये तो चोरी करने के ही समान होगा, तो हम इतनी दिन तो इसको नहीं रख पाएंगे। इट मस्ट गो टू इट ट्रू ऑनर, तुम ही बता रहे हो जॉन बायरो आ चुका है तो उसको हमें दे देना चाहिए, तो तुम बताओ कि हम कितनी देर रखें। तो वो आराम कहता है कि चलो 6 month तो रख लो। तो ये कह के वो बर्ड को ऊपर फेंकता है आसमान में, और बर्ड ऊपर उड़ जाता है। तो फिर क्या होता है, 2 weeks वो ऐसे ही एंजॉय करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, और फिर उसको बांध में बांध देते हैं। 2 weeks तक वो ऐसा करते हैं, टेक द हॉर्स आउट, राइड इट, एंड बट एवरी टाइम वेन एवर आराम जो है अलोन उसको राइड करता है, हॉर्स जो है थ्रोज हिम अवे, है ना। बट आराम इज स्टिल होपफुल टू लर्न हाउ टू राइड अ हॉर्स, अभी उसको आया नहीं है। तो वन मॉर्निंग व्हाट हैपन्स, दे रैन इनटू जॉन बायरो, अचानक जब वो उसको बांधने जा रहे हैं विनय यार्ड में फतवैजियन के, तो सामने ही उसको जॉन बायरो आ जाता है। अब मुराद कहता है कि तुम हट जाओ आराम, लेट मी टॉक टू जॉन बायरो बिकॉज आई हैव अ वे विद फार्मर्स ऑल्सो। Now you see here, Murad says I have a way with horses, I have a way with dogs, I have a way with robin birds. I have a way with horse. I have a way with dogs.
एंड हियर ही इज सेइंग आई हैव अ वे विद फार्मर्स आल्सो। तो आप देख सकते हैं कितना लाइवली पर्सन है, वो हर सिचुएशन से निपटना उसको आता है। तो यहाँ भी जब ओनर ही सामने आ गया है उन दोनों के, तो यहाँ पर वो कहता है कि लेट मी टॉक टू हिम also। तो जो जॉन बायरो है, ही स्टडीज़ द हॉर्स ईगरली, उस सारे घोड़े को देखता है कि ये तो हैं, क्या नाम है इस घोड़े का, व्हाट इज़ इट्स नेम मुराद। तो वो पूछता है, तो इट्स नेम इज़ माई हार्ट। तो वो कहता है लवली नेम फॉर ए लवली हॉर्स, ये तो बड़ा अच्छा घोड़ा है। तो इट इज़ द हॉर्स स्टोलन फ्रॉम मी, मेरा भी घोड़ा चोरी हुआ है, मुझे इसको देख लेने दो। लेट मी लुक इनटू इट्स टीथ। तो उसके टीथ देखता है कुछ ऐसे कि टूथ फॉर टूथ, टूथ फॉर टूथ। वो बोलता है कि बिल्कुल इसके दांत भी मेरे घोड़े जैसे हैं। कि वो जवाब देता है जॉन बायरो कि इफ़ आई डोंट नो योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी, तो मैं ये ज़रूर कह देता कि दिस हॉर्स इज़ माइन, येट आई वुड से हियर दिस हॉर्स इज़ ट्विन ऑफ माई हॉर्स। ये बिल्कुल जुड़वा है। बाय बाय, यू एन्जॉय। तो वो क्या करते हैं, दोनों घबरा जाते होंगे। फॉलोइंग मॉर्निंग दे टुक इट टू जॉन बायरोज विनेयार्ड, है ना, फार्म्स। तो उसके अंगूरों के खेत में वो उसको ले जाते हैं, पुट इट इन, उसको वहाँ डाल देते हैं। द डॉग्स देयर, है ना, एट द फार्म ऑफ जॉन बायरो मेड नो साउंड, हैं, दे मेक नो साउंड। आराम हैरान होता है कि वाई डिडंट जो है डॉग्स बाक, क्यों नहीं भौंके। तो आई हैव अ वे विद डॉग्स ऑल्सो। I have a way with dogs. तो यहाँ पर वो जवाब देता है। तो आप देख सकते हैं मुराद तो घोड़ों का भी उसको पता है, डॉग्स का भी पता है, स्पैरोज़ का भी पता है, फार्मर्स का भी पता है। पुट्स अराउंड हॉर्स, तो वो क्या करता है, उसको जब छोड़ते हैं तो कुत्ते ना भौंकें, इसके लिए वो क्या करता है, तो पुट्स आर्म्स अराउंड हॉर्स, घोड़े को अपने ऐसे बाजू में लपेटता है। प्रेस्ड हिज नोज समथिंग लाइक दिस, तो अपने नाक से उसको दबाता है, पैट करता है, goes away, और वो चले जाता है। ठीक है। दैट आफ्टरनून केम जॉन बायरो इन सरी, तो अपनी सरी में वो जॉन बायरो आता है। शोड आराम मदर्स द हॉर्स हैड बीन स्टोलन इज बैक, और वो आराम की माँ को बताता है कि जो घोड़ा मेरा चोरी हो गया था वो वापस आ गया है। यहाँ भी आप देखिए कि वो ये बिल्कुल भी नहीं कहता है उसकी माँ को कि मुझे कल ही तो आराम और मुराद मिले थे एक घोड़े के साथ, कहीं ये वही घोड़ा तो नहीं है, क्योंकि वो गैरो गलेनियन ट्राइब के बारे में जानता है, इस फैमिली को भी जानता है, ऑनेस्टी के लिए उसको वो जाना जाता है, तो उसे मालूम है। यहाँ पर वो डिस्कस भी नहीं करता है, ये ज़रूर कहता है कि मेरा घोड़ा पहले से स्ट्रॉन्गर है, इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर, बेटर टेम्पर्ड हो भी क्यों ना, क्योंकि जब एक घोड़े को नेचुरल उसका हैबिटेट मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, दौड़ने को फ्रीडम मिलेगी, तो वो अपने आप ही टेम्पर भी उसका ठीक होगा और वो स्ट्रॉन्ग भी फील करेगा। बंधा हुआ घोड़ा और एक फ्रीडम के साथ जो रहे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में, तो वो फाइनली थैंक गॉड करता है। खुशरोब वहाँ बैठा हुआ है तो वो इरिटेटेड है, शाउटेड करता है, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जा, अब चुप हो जा, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तेरा घोड़ा आ गया ना, पे नो अटेंशन टू इट। आखिरी में भी उसकी आखिरी लाइन में भी यही है, पे नो अटेंशन टू इट, तेरा घोड़ा आ गया ना, जा काम कर अपना। तो दिस वाज द समरी ऑफ द लेसन। वी विल स्टडी द एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु वर आराम एंड मुराद इन द लेसन? इफ इट इज आस्क्ड फ्रॉम यू हु वर आराम एंड मुराद, तो यू रिमेंबर द स्टोरी नाउ। इन इट्स आंसर यू कैन राइट they were cousins. Yes, they were not friends, they were cousins. ठीक है, चाचे ताए के थे वो। Aram was 9 years, you remember, and Murad was elder one, 13 years. Both of them were fond of horse riding. Yes or no? They belong to the Garo-Galenian tribe of Armenia. So you can write this answer. ठीक है। Next one. If I ask you, Aram saw Murad was sitting on a beautiful white horse, तो उसने एक लाइन कही, I could not believe what I saw. राइटर ने बोला था ना ये, तो what was so unbelievable and why? तो so unbelievable क्या था उसने कि वो अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं कर सकती, वो ड्रीम कर रहा है या रियलिटी देख रहा है कि ये क्या है, क्या चीज़ थी वो।
तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे? वन डे इन द वी आवर्स एट 4 इन द मॉर्निंग था ना, मुराद जब घोड़ा लेकर आया था. द नरेटर सॉ हिज कजन मुराद sitting on a beautiful white horse. It was unbelievable. This was the thing unbelievable for Aram. 2 reasons वो देता है. Because they belong to a poor family, Garogleanian tribe. And buying such a beautiful horse was beyond their means. मतलब ही नहीं था उसको खरीद लें. Unbelievable था. दूसरा रीजन ये था कि अनबिलीवेबल लग रहा था कि अराम हैड ए लॉन्गिंग फॉर हॉर्स राइडिंग, और आज वो सपना उसका पूरा होने वाला है. जिस चीज़ को हम लॉन्ग करते हैं वो सामने आ जाए अचानक तो हमें लगता है अरे ये मैं रियलिटी है या ड्रीम है. तो ये था कि वो क्या विश्वास नहीं कर सका. आई कुड नॉट बिलीव वट आई सॉ. तो दिस वाज द थिंग ही कुड नॉट बिलीव वट ही सॉ, आराम सॉ. और वाई? बिकॉज दे वर पुअर वॉज द रीज़न. सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम दिस लेसन इज, जो गैरोग्लेनियन ट्राइब है उसके बारे में 3 बातें आई हैं इसमें. व्हाट ट्रेट्स ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली आर हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी. इन दिस स्टोरी तो आपने देखा कि गैरोग्लेनियन ट्राइब जो फैमिलीज़ हैं दे वर पुअर. इवन देयर एल्डर्स डू नॉट नो दे विल बी एबल टू अरेंज द इवनिंग मील और नॉट टू फिल देयर bellies. Despite being poor, they were famous for their honesty. पहली बात, they were known, they were famous for their honesty. And next thing is, they believe in what is right and what is wrong. Call spade a spade. What is right and what is wrong? सही को सही कहना, गलत को गलत कहना. दोगलापन नहीं था. They were known for. And third thing is, never a Garogleanian will take advantage of anybody. Never. A member of a Garogleanian family can never be a thief. They would never steal. इसके लिए वो जाने जाते थे. No member of the Garogleanian family could be a thief. नहीं हो सकता. ये प्रूव करती है, स्टोरी में आया जॉन बायरो वाला सीन आप याद कीजिए. इवन जॉन बायरो व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक, तो उसकी अराम की मदर के पास आता है. वो कहता है कि कल ही तो मैंने देखा था अराम और मुराद को एक वाइट घोड़े के साथ, और आज मेरा घोड़ा वापस आ गया. तो इवन जॉन बायरो व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक डिड नॉट ब्लेम द 2 बॉयज़ फॉर मिसिंग ऑफ हिज हॉर्स फॉर सो मैनी डेज. वो अपनी उसकी मदर को ये नहीं कहता है कि ये तुम्हारे बच्चों ने ये मेरा चुराया हुआ था. जब वो रैन इनटू होता है मुराद और आराम को रंगे हाथ, वो देख भी लेता है, तब भी कहता है कि अगर मैं तुम्हारे परिवार को ना जानता कि तुम गैरोग्लेनियन फैमिली से हो, आई वुड हैव सेड आई स्वेयर कि ये मेरा घोड़ा है. बट बिकॉज यू आर फ्रॉम गैरोग्लेनियन ट्राइब, दिस हॉर्स इज़ ट्विन ऑफ माई हॉर्स. ये तो उसका जुड़वा है, क्योंकि ये वो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम गैरोग्लेनियन फैमिली से हो, तुम चोरी नहीं कर सकते, तुम मेरा घोड़ा चुरा नहीं सकते, ये कोई और ही घोड़ा है. तो दीज वर द 4 traits of Garogleanian family which are highlighted by the writer here in this story. So you can write it like this in the answer of this question. ठीक है. We move to next question. Did the boy, you saw in the end what happens? Aram and Murad decide to return the horse to its true owner. काफ़ी दिन वो उसको enjoy करते हैं. तो मुझे ये बताइए आप, ये क्वेश्चन आता है, Did the boys return the horse because they were conscience stricken? उनकी आत्मा जाग गई थी, और because they were afraid, या वो डर गए थे? आप क्या समझते हैं इस बारे में? तो as you have studied in the story, you can go for summary and line to line explanation. You have seen in the story that there was no question of their conscience being stricken. प्रश्न ही नहीं था ये तो कि उनकी आत्मा जाग गई हो, क्योंकि उन्होंने वो चुराया नहीं था. क्योंकि आराम ने भी ये कहा था
Stealing of a horse for riding is not equal to the stealing of money. अरे हमने तो बेचने के लिए थोड़ी चुराया है, हमने तो थोड़े दिन राइडिंग के लिए अपने पास रखा है, हम इसको वापस कर देंगे. They did not think they had done anything wrong, so there was no question कि हमारी उनकी जो है कंसाइंस टिकन थे इसलिए वापस किया. They did not think their act of taking John Byro's horse was an act of stealing, as they believed that they are not going to sell the horse further. Rather, they kept it with them just to enjoy horse riding only. उन्होंने अपने पास रखा सिर्फ हॉर्स राइडिंग के लिए. They simply wanted to enjoy the horse riding for some time. When it was known that John Byro was looking for his lost horse, Murad decided to return it. जब उन्हें लगा कि मुराद ने पूछताछ शुरू कर दी है तो उसने सोचा कि चलो अब वापस कर देते हैं, बहुत दिन हो गए. But the narrator had not learned to write. So Murad agreed to keep the horse for another 6 months. जब नरेटर ने ही उसको एक तरह से जिद की, इंसिस्ट किया कि नो यू कीप it with us for a year. So Murad said, no, a year will be equal to stealing of the horse. We will keep it for 6 months. But then one day, John Byro saw the 2 boys with the stolen horse. He did not suspect them of being thieves. उन्होंने बिल्कुल शक नहीं किया उस पर, क्योंकि वो जानता था कि ये गैरोग्लेनियन बॉयज़ हैं. But the boys were frightened, so they went quietly and left the horse at Byro's farm. It was because they knew John Byro and his belief that Garo-Galenian tribe boys can never be thieves. They decided to give it back to its owner. They wanted to keep this belief about their tribe intact. वो चाहते थे कि ये जो हमारी जाति के बारे में विश्वास बना हुआ है ना, वो टूटे ना. ये था वो डर भी हम नहीं कह सकते, कंसाइंस टिकन भी नहीं कह सकते. बस वो इतना चाहते थे कि ये जो हमारा परंपरा है कि चोरी नहीं कर सकते हम, ठीक है, वो ना टूटे. इसलिए उन्होंने दे डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स. यू कैन राइट दीज लाइन्स इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि वाई द बॉयज डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स. ठीक है. These were the important questions, those which are asked frequently in final exams. I think it should be enough, but still, if you say any question coming out in your mind, feel free to ask me. Go to comment section. चैनल को सब्सक्राइब करें. ये वीडियो अच्छा लगा है आपको, लाइक करना मत भूलिए. दोस्तों में शेयर कीजिए, क्लासमेट्स में भी कमेंट कीजिए मुझे आपको कैसा लगा. I will see you next week with a new lesson. Till then, bye bye. Love your life, live your life. Take care. Thank you.